Assalamu alaikum viewers. Uh, today is our fourth session of Friday Hour with APSS, and today we have a very professional young person who has a rich career in security line, and Yusuf Beg, and he is marked in himself. He is going to present us today on ELV security systems and how they go and how they work. He's going to explain us. और ये निहायत ही कॉम्पिटेंट पर्सन हैं अपनी फील्ड के. इन्होंने मिडल ईस्ट में बड़ा अपना टाइम गुजारा है. वो अपना तारुफ तो खुद कराएंगे. मैं उनको दावत देता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर और आप सब को खुशामदीद कहता हूं आज के सेशन में. I am adding him to our session. Okay. Welcome Yusuf. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी. रईस साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे कराची का मौसम कैसा चल रहा है? क्या है कराची का अपडेट? कराची का मौसम आपको पता है कि गर्म, ह्यूमिड, नो रोड्स, नो लाइट, नो ओहो. वाटर. ओके ओके. मैं अभी भी जो है यहाँ पे इत्तेफाक ऐसा है कि actually I was prepared for this as security professional. You have to be prepared for all the things. So लाइट नहीं है यहाँ पे अभी भी. और ये है कि बस गर्मी काफी ज्यादा है. एंड we are running on backup generators, UPS systems. So it is like this. Thank you very much for inviting me on your show, and I really appreciate it. Or Yusuf, I would like you to introduce yourself to our viewers today. कि ये आपका अपना क्या कंप्लीट बैकग्राउंड है. मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको बुलाने से पहले कराया, लेकिन आई वुड लाइक योरसेल्फ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिटेल. श्योर जी. मैं साथ में प्रेजेंटेशंस भी रन कर लूं इसके साथ ही. रईस साहब जी जी. shall I start the presentation as well? नहीं, अभी पहले आप अपना इंट्रोड्यूस करें फिर. अच्छा इंट्रोडक्शन. सॉरी, I missed that part. Sorry. Actually, I was suffering for some sore throat. That's why I have to keep drinking water after every interval of 5 minutes, 6 minutes. May Allah give you an early. Thank you very much. Okay, जी मेरा नाम यूसुफ जमील बेग है. I had spent like 15 years in Saudi Arabia, Middle East specifically. जिसमें सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा टाइम गुजरा है मेरा. I spent a decade over there since 2017 to 2017. Then I moved to Bahrain, worked with so many good government agencies, companies, semi-government agencies, and then I moved to UAE for the port project. And then after that, I came back to Pakistan in 2019 and joined a company over here named SBS. So basically, my specialties are ELV systems, extra low voltage. ये वो systems होते हैं जो कि basically as a physical तो मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा importance होती है किसी भी security program को complete करने में. You can include a smallest thing of security equipment which is running on a current in that division. It's a very wide spectrum of that one. ELV क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आपके स्लाइड्स में इंशाअल्लाह शेयर करूंगा जरूर. Let's see what you have for us today, and we want to learn from your experiences and your presentation. आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. ये खासा इन है क्योंकि आजकल की दुनिया में सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड these devices are very important. And kindly share your experiences and your presentation. Thank you very much. I'll handle the show to you now. Thank you very much, Raisa. Thank you very much. I will switch on to my presentation first. It will take like a minute or okay.
I hope everything is okay. If you can see. Okay, so for today's session, we are going to talk about, and we need to learn, or maybe if we don't want to go into the be specific technical details, but to just to cover the whole spectrum of what is ELV security systems. So जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कल्चर आम है कि सिक्योरिटी मीन्स अ गार्ड which is not complete at all. Security guard is a man guard field or a subdivision of a physical security. Now, what is physical security? Physical security is basically a complete security program which has to be developed as per the requirement of the facility. तो आज के हमारे कॉन्टेक्ट्स होंगे, मेरा इंट्रोडक्शन जैसे मैं दे चुका हूं, और उसके अलावा हम बात करेंगे ELV सिस्टम्स के ऊपर, एंड देन यू कैन लीव योर क्वेश्चंस in the comment section. Once we are offline, we can always reach to you, or I will leave my mobile number on the WhatsApp and my email address as well, so you can always get back to me on any question if you have any clearance required, or if you require any further assistance. So as I told you, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मेरी स्पेशलाइजेशन रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आई हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफिकली इन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी. अगर मैं नाम लूं तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम आते हैं, जिसमें सऊदी अरामको आता है, सदारा जुबैल प्लांट आता है, रॉयल कमीशन आता है, यसरिफ आता है. अगर मैं बहरीन का नाम लूं तो वहां पे किंग फाहद कॉजवे आता है. अगर मैं दुबई का नाम लूं तो वहां पे डीपी वर्ल्ड का नाम आता है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम. मैं इसमें जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, अल्लाह की रजा से ही सब कुछ पॉसिबल है. एडिशनली आई एम सर्टिफाइड बाय पेल्को, बॉश, हनीवेल, मोबोटिक्स एंड सियास. दीज आर द लीडिंग ब्रांड्स for electronic security systems manufacturers. Uske alawa, I have certifications from traffic safety systems, which is for basically for the basically on the highways. अगर आप कभी बाहर ट्रैवल किया हो आपने, तो आपको जब देखा होगा, जैसे शेख जायद रोड है, वहाँ पे हर 4-5 किलोमीटर बाद एक कैमरा लगा हुआ है जो कि स्पीडिंग को कंट्रोल करता है. सो दिस इज दैट सिस्टम एज वेल. उसके अलावा आई एम सर्टिफाइड डिजाइनर फॉर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम्स. आई हैव सर्टिफिकेशंस from ASIS. I am certified from so many institutes of security based on UK curriculum as well on American standards. I am certified trainer for surveillance systems. Means if you need me to give the training for your staff, I can do that thing as well. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत डीप चैप्टर है, जिसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले किसी और प्रोग्राम में, कि सर्टिफाइड ट्रेनर ही क्यों होना चाहिए किसी भी सर्वेलेंस सिस्टम के लिए. सो लेट्स बैक टू दिस ELV. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के रखी है. आई कोटेड फ्रॉम माय टेक्स्ट बुक. Physical security is to protect assets, whether they are tangible, intangible, or mixed, and whether they are form of people, property, or information. Security is not not about to have 3 people, 4 people, or something like that. Security, physical security का मतलब है complete security program, जो कि आपके प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स होते हैं उनके लिए, चाहे वो इंतहाई अहमियत के हामिल हो, चाहे वो एक एसेट हो ऐसा जिसके डैमेज होने की सूरत में आपका बिजनेस को कोई कंटिन्यूटी कोई प्रॉब्लम ना हो, और चाहे वो मिक्स एंड मैच हो इन द फॉर्म ऑफ पीपल. कोई हॉस्टेज कंडीशन है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी है, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया है, इट इज लाइक दिस. प्रॉपर्टी आपकी और इंफॉर्मेशन. हम लोग बहुत दफा तो कैमरास लगा देते हैं, बट वी नेवर पे अटेंशन ऑन द स्विच through which we have connected our cameras. Anybody can tap into the switch and can instruct our video surveillance. और आप देखते होंगे जैसे मैं अभी जो नाम लेना लगा हूँ, so it doesn't mean के ये particularly उसके लिए, but सारे टीवी चैनल उसी पे होते हैं कि जी फुटेज, सिक्योरिटी फुटेज निकालने में फलां टीवी चैनल सब पे बाजी ले गया. तो this should not be the case.
video surveillance footage is a very critical and important piece of evidence for law enforcement agencies. It should not be public. It should not be taken out from that devices unless until the people who are taking out, they are authorized and they are told to do it, or is through proper channel from the court or from the whatever the agencies will decide. Additionally, access control is again a very important factor in security systems. Okay, यहाँ पे मैं अच्छी बताता चलूँ आपको what is mean by ELV. So basically, ELV is extra low voltage. Now, हम अक्सर अकात ये सुनते हैं कि जैसे कॉमन टर्म है 220 वॉट और 440 वॉट. So these are basically the high voltages, considered as high voltages in security or in normal electronic field as well. The low voltages are basically 12 volt DC or 24 volt AC. So why these called are ELV security systems? Because all of these systems are running on 12 volt DC or 24 volt AC. तो इसी वजह से इनको ELV सिक्योरिटी सिस्टम्स कहा जाता है. अब कैमरा से लेके आप एक्सेस कंट्रोल का रीडर, बैच रीडर ले ले, इवन दैट इज रनिंग ऑन 24 volt AC or 12 volt DC. Sometimes it's taking 3.4 volt only, which is a non-lethal volt. Then there is a counterband detection. हम इसको आगे देखेंगे कि what does mean by counterband detection. And then we have intrusion detection system, which is called generally known as IDAS. So ये चारों सिस्टम बन के बेसिकली एक आपके पास एक पीस बनता है जो कि फिजिकल सिक्योरिटी प्रोग्राम को कंप्लीट करने में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को कंप्लीट करने में काम आता है. तो फर्स्ट वी विल गो टू द सीसीटीवी सिस्टम. अच्छा, नाउ अब हमें जो सीसीटीवी का एक नॉर्मल टर्म है, दिस कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन. आपको जैसे पता है कि एक होती है ब्रॉडकास्ट which is open for everyone, जो हमारे आपके मेरे घरों में पीटीवी की सूरत में आता है या जो केबल की सूरत में आता है, या इवन के पीटीवी अगर आपने केबल नहीं भी लगाया हुआ तो जो टीवी का लोकल एंटेना है that is catching that transmission, that is called and broadcast. अच्छा, सीसीटीवी basically is a closed circuit के the person who is being recorded through the medium and the place where it is being recorded all should be सिक्योर. किसी भी टाइम के ऊपर कोई भी वीडियो को लीक ना किया जाए या लीक ना हो रही हो अनऑथराइज्ड यूजर के लिए. सो दिस इज कॉल्ड अ सीसीटीवी सिस्टम. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत आम है कि हम हमेशा जब भी आप आईपी कैमरेस की बात करें अगर, तो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123 विच इज totally out of question. ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है. You should not put a common password any given time. थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, but this is the key point. So अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है और you can take the notes later in from the recording as well, तो आप जरूर चीज को देखें कि always change your passwords of cameras, of your managed switches and of your NVRs, network video recorders, because जब तक कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर नहीं करेंगे. अब आप देखें यहाँ पे सीसीटीवी सिस्टम is directly connected with the information security. So this is the complete circle. It cannot be broken down. If it is broken down in half, it is going to be in a half pie or a piece of pie, then it is not a complete security system. So this is the very clear thing. अच्छा, नाउ सर्वेलेंस हमारा जो होता है वो उसकी बेसिक हमारे पास अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो व्हाट इज द व्हाई वी आर गोइंग टू हैव द कैमरास. ऑब्वियसली एक्टिविटीज डिटेक्ट करने के लिए कि कोई ऐसी मेल फंक्शन प्रैक्टिस कोई कर रहा हो अगर, या कोई अनऑथराइज एक्सेस आ रही है, कहीं कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है अपनी फैसिलिटी में, तो उसके लिए सिक्योरिटी रिस्पॉन्स होगा. रिकॉर्डिंग वीडियोस को रिव्यू करने के लिए कि अगर इन केस कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है तो उसके इन्वेस्टिगेशंस में काम आता है.
इसके लिए दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस सर्विलेंस सिस्टम इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोग्राम. दैट्स व्हाई इट इज सो क्रूशियल एंड सो इम्पोर्टेंट. सब बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम में सर्विलेंस की. अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ वीडियो सर्विलेंस सिस्टम्स. हमने ये तो बहुत दफा देखा है कि किसी से भी आप पूछें जो आजकल हमारे नॉर्मल हालात चल रहे हैं, यार कैमरा लगवाना है, ठीक है जी, कैमरा, केबल और डीवीआर, दैट्स इट. बट दिस इज नॉट द थिंग. मेन एलिमेंट्स आर फील्ड ऑफ व्यू, आपका टारगेटेड होना, कि आपने देखना क्या, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए. अक्सर लोग कहते हैं यार 2 कैमरा लेफ्ट लगा दो, 1 कैमरा राइट लगा दो, 1 कैमरा यहां से देखो, जो भी यहां पे हो रहा है वो नजर आना चाहिए. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई एज सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. और जैसे अगर आप इंस्टॉलर हैं या आप अगर डिजाइनर हैं, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू, व्हाई, व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैमरा. देन सी, अब हो सकता है कि वो गेट के ऊपर लगा हुआ हो, फेंस के ऊपर लगा हुआ हो, डेजर्ट को देख रहा हो, सी को देख रहा हो. सो इट कुड बी एनीथिंग. सीन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, के देखना, जहां देख रहा है वो जगह क्या है. देन लेंस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि अगर हम प्रॉपरली एक सिस्टम को डिजाइन नहीं करते और जो ऑफ द शेल्फ हमारे पास मौजूद है सिस्टम, वो उठाकर डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो सिस्टम कुछ अरसे बाद रिप्लेस करना पड़ जाए. देन वी हैव अ लेंस, देन अ कैमरा. ऑफ कोर्स अगर हम प्रॉपर लेंस यूज करेंगे तो उसके साथ का हमें प्रॉपर कैमरा भी यूज करना है, जो कि वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है. देन वी मस्ट कंसिडर द ट्रांसमिशन मेथड. अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन मेथड जो है वो ये है कि वीडियो जो है वो कैमरे से एंड रिकॉर्डिंग तक या मॉनिटर तक पहुंच रही है, उसका मीडियम क्या होना चाहिए. इफ वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग रन्स, देन वी मस्ट यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर. अगर हमारा 100 मीटर या उससे कम का डिस्टेंस है, तो देन वी कैन गो फॉर नेटवर्क केबल्स. और इन केस ऑफ एनालॉग कैमरास, देन वी कैन गो फॉर RJ59 और RJ6 cables in some cases. Sorry, मुझे एक्चुअली पसीना भी आ रहा है क्योंकि as I told you कि there is no light, so I have to bear the heat. Okay, so then recording equipment. अच्छा, safety of recording equipment is again very necessary, क्योंकि हमारे अक्सर ये हुआ है कि हमने सर्वेलेंस तो इंस्टॉल कर दी और जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, वो जाते थे अपने साथ डीवीआर भी निकाल के ले गए. तो इसको कहते हैं ना रहेगा वास ना बजेगी बांसुरी. तो अगेन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ दैट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इज सेम इक्वल इंपॉर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोग्राम, क्योंकि वही एक डिवाइस है जिसके अंदर आपका सारा डाटा, इवेंट का डाटा रिकॉर्डेड है, जो कि आप बाद में लीगल परसुइंग के लिए यूज कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं सिस्टम डिजाइन की, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वीडियो सर्वेलेंस ये इतना क्रिटिकल नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ काफी लोगों ने इसको समझा हुआ है, या कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है. बट ऑल यू नीड टू डू एंड टू फोकस अ सिंपल फ्यू रूल्स, कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो डाटा है, जो आपका इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हो, उसमें कैमरा, केबल एंड रिकॉर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा कुछ भी आपकी है, माउंटिंग हो गई, कोई और चीज हो गई, फॉर एग्जांपल सनशेड हो गए और मॉनिटर्स हो गए, दे आर पेरिफेरल डिवाइसेस. They can be changed at any time without giving a big shock to the finance or to the upgrade of the system. So you can have this thing always updated. So जो 3 चीजों को आपने हमेशा अपनी नजर में रखना है कि कैमरा आपका अच्छा हो, जो मीडियम आपका है केबल, that should be the perfect and as per the standards, and the recorder. You must have appropriate data recorded like for 30 days, for 45 days, जो भी आपका रूल है. वैसे स्टैंडर्ड 30 डेज होते हैं. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम जो है ना, वो जो हमारे सेल्स के लोग हैं, वो अक्सर, इंक्लूडिंग मेरे अपनी कंपनी के सेल्स के लोग भी काफी दफा ये करते हैं, मैं हमेशा उनको तस्हीह करता रहता हूँ कि हमेशा
एप्लीकेशन जहां पे सिस्टम लग रहा है वहां पे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट देखो, ये नहीं कि जो इक्विपमेंट है वो वहां पे फिट कर दो. सो इट इज लाइक लेट द एप्लीकेशन चूज द इक्विपमेंट, नॉट द अदर वे अराउंड. कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जरूरत है एक्सपोजर प्रूफ कैमरा की, सो वहां पे आप एक सादा कैमरा नहीं लगा सकते, इट विल गिव यू अ डिजास्टर. और जहां पे जरूरत है आपके एक सादे कैमरे की, वहां पे यू कैन नॉट पुट एटेक्स रेटेड कैमरा ओवर देयर, अगेन इट विल बी अ ओवरकिल फॉर द प्रोजेक्ट. सो दिस शुड बी द की, वन ऑफ द कीज. देन डिजाइन जेनरिकली. अच्छा, कभी भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए सिस्टम डिजाइन करते हैं, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है. इट शुड बी डिजाइन एज एन ओपन वीडियो नेटवर्क इंटरफेस. हमेशा ओपन स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन करना चाहिए सिस्टम, कि इन केस ऑफ एनी पार्ट ऑफ गोइंग गॉन ऑब्सोलीट, यू ऑलवेज हैव द रिप्लेसमेंट. So this should be kept in the design phase. अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा अलमिया है कि यार बजट नहीं है हमारे पास. तो सर बजट तो कभी भी नहीं होता. तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो हमारी नीड्स पूरी कर रहा है, ओपन नेटवर्क पे जनरेट किया गया उसका BOQ, और हमारे जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको पूरी हो रही हैं, उसके साथ पूरी हो रही हैं, उस पर डिज़ाइन करें. अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं ये बहुत बड़े नंबर ऑफ कैमरास रिकॉर्डेड करेंगे इन द स्टार्ट, आप वहाँ पे फॉर द फर्स्ट फिजिकल ईयर आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग सॉल्यूशंस, जो रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन है वो कम कर दें, वो सिर्फ 7 दिन कर दें, मोशन ओनली पे कर दें. ठीक है जी. इस तरीके से आप अपनी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं. आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो इस कैपेबल हुआ है और डिजाइन जेनरेट हुआ है, तो इन फ्यूचर जब आप उसको अपग्रेड करना चाहेंगे फॉर द हायर साइड ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, तो आप इजीली उसके अंदर जस्ट यू नीड टू प्लग एंड प्ले द हार्ड ड्राइव्स एंड योर सिस्टम विल बी रिकॉर्डिंग फॉर मोर देन फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड डेट. अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचें कि सिस्टम को जो है हमने बस हमने हमेशा के लिए जो है वो सिस्टम बिल्ड कर दिया है, सो नाउ देयर इज नथिंग कैन बी डन, और बस ये हमने इसी तरफ जाना है. और उसके लिए अक्सर औकात लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कैमरा क्वालिटी पे, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, विच शुड नॉट बी द केस एक्चुअली. हमेशा ओपन रहते हुए नेटवर्क को डिज़ाइन करें, ओपन रहते हुए कैमरा सिस्टम को डिज़ाइन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं और इन्होंने बहुत लंबा चलना होता है अपने साथ सिस्टम्स के साथ, इसीलिए को लेकर चलें. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ सर्विलेंस सिस्टम, तो व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेंशन है, देयर आर 7 और 8 स्टेप्स. तो सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट द पर्पस ऑफ द वीडियो सिस्टम. क्यों चाहिए आपको सर्विलेंस सिस्टम? ये डिजाइनर का काम है कि वो अपने एंड यूजर से क्वेश्चंस को पूछे. या अगर मेरी वीडियो कोई कंसल्टेंट देख रहा हो तो उसका भी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मकसद क्या है आपके वीडियो सर्विलेंस का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वीडियो सिस्टम. क्या कोई ऐसी जगह को देखना है जहां पे पानी है, तो देन यू हैव अ सेपरेट सिस्टम इन नेचर. ऐसी जगह देखना है जहां पे डेजर्ट है, देन यू मस्ट हैव टू हैव अ कैमरास व्हिच आर हायर इन टेम्परेचर. अगर आपने ऐसी जगह पे कैमरा लगाना है जहां पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है, जैसे ऑफशोर रिग्स वगैरह, तो वहां पे डेफिनेटली कैमरास की रेटिंग कुछ और. सो पर्पस ऑफ द वीडियो सिस्टम should be very clear in the start कि हमने क्या कहाँ देखना. Then you need to write the purpose of each camera. अच्छा, अभी ये जितनी चीजें हैं ना, ये मैं इसके स्लाइड्स के अंदर बीच में एक शेयर करूंगा, एक छोटा सा टेबल जो आप रेफरेंस के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज एडिट इट, आई एम नॉट बाउंडिंग यू टू नॉट एडिट इट, बट यू कैन ऑलवेज एडिट. ये हमेशा आपके लिए हेल्प आउट करेगा
कि आप जब भी एक सिस्टम डिजाइन करें तो ये आपको जा सके, समझा सके सब चीजों के हवाले से कि आपने आपका व्हाट इज योर ओरिजिनल डिजाइन. So you need to write the purpose of each camera. For example, there is a camera installed on the door. There are two cameras installed on the door. One is supposed to see who is coming in by the facial recognition means, and the other cameras is just for general viewing of the people who are entering and exiting the building or the room. So camera purpose should be mentioned very clearly, ताकि आपको भी पता हो कि ये पे कैमरा क्यों लग रहा है और उस बंदे को भी पता हो जो लगवा रहा है कि मैं कैमरा यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ. Then we need to define the areas to be viewed by each camera. For example, जैसे मैंने बताया कैमरा लग रहा है गेट के ऊपर, तो you need to define that area the camera is going to place. For example, the camera is going to place on meeting room at entrance. So it is like this. अच्छा, कैमरे की सिलेक्शन हमेशा जो है वो इन तीन के ऊपर आप देखें, कोशिश करें कि करें. वैसे तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सेंसिटिविटी लेवल, कलर ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से. देन रेजोल्यूशंस, आपने जनरल व्यू करनी है, मोशन डिटेक्शन करना है, ऑब्जर्व करना है, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफिकेशन, लेसेस लेमपी रिकग्निशन या फैसिलिटेशन. सो दीज आर द बेसिकली द 5 or 6 कैटेगरीज जो आपकी डिफाइन करेंगी कि व्हाट रेजोल्यूशन डू यू नीड एक्चुअली. इफ यू जस्ट वांट टू जनरली व्यू द एरिया, then a normal 1080p camera would be good enough. But if you want to monitor some specific area, then maybe you need a camera which can zoom in. अगर आपने डिटेक्शन देखनी है तो then maybe you need a camera which can support a motion detection. Then if you need to observe, if you want me to see that what I am doing over there in one area, then you need to see that one. तो इस तरीके से अब जैसे लाइसेंस प्लेट आइडेंटिफिकेशन, अब नेशनल प्लेट आइडेंटिफिकेशन के कैमरे बिल्कुल अलग जेनरिक के होते हैं. दे आर सो मच हायर इन फ्रेम पर सेकंड्स, क्योंकि जब गाड़ी गुजरती है तो वो नॉर्मली तौर पे हमारा कैमरा 30 फ्रेम्स या 25 फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहा होता है एज अ लाइव वीडियो. बट इन लाइसेंस प्लेट दे आर वर्किंग ऑन 120 फ्रेम पर सेकंड समटाइम्स एंड 90 फ्रेम पर सेकंड. तो इट इज लाइक दैट. सो फेशियल रिकग्निशन के अंदर जैसे कैमरा जो है उसके अंदर 80% जो है वो कैमरे के व्यू में शक्ल आती है. देयर इज नथिंग लेफ्ट राइट, ओनली द फेस. सो रेजोल्यूशन विल डिफाइन दैट व्हाट कैमरा यू आर गोइंग टू हैव एज पर योर दीज रिक्वायरमेंट्स. देन फीचर्स, ऑफ कोर्स दीज फीचर्स आर वेरी गुड इफ यू हैव इन डिजाइनिंग. फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जैसे कि जहां से सामने से कैमरे के ऊपर लाइट पड़ने का चांस हो, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू have the camera which is wide dynamic range, WDR in a local language. ऐसा व्यू जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही हो, तो then you can have the camera which is BLC compensated, backlight compensation, automatic gain control, AGN is there. So ये सब वो चीजें जो कि आपको देखनी होंगी इसमें. Then there is a selection of lenses. अब सिलेक्शन ऑफ लेंसेज जो हैं ये यूजली तौर पे अब तो आजकल तो खैर नहीं होते बिकॉज ऑफ द बॉक्स कैमराज एंड द रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैपन इन द इंडस्ट्री. तो बट नॉर्मल तौर पे द मोर बिगर द लेंसेज द मोर स्मॉलर एरिया यू आर गोइंग टू कवर. तो डिस्टेंस टू द कैमरा टू द सीन, ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है मेरे पास, मैं आपको लाइक टू शेयर. या सो एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला है दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा टू द सीन. फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैमरा लगा हुआ है 40 फुट की हाइट के ऊपर और आपका जो 40 फुट की हाइट पे लगा हुआ है और जो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 30 फुट. ठीक है जी. तो आप कैसे उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा टू द सीन, फोकल लेंथ मेरी कितनी आ रही है. फॉर एग्जांपल एक कैमरा आपने सेलेक्ट किया जिसका आईआर डिस्टेंस है 30 मीटर. अब आपने देखा कि जी कैमरा लगा हुआ है 40 मीटर पे
और मेरा जो डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा टू द सेंटर ऑफ द सीन है वो है 30 मीटर, तो इसका मतलब मेरा कैमरे का डिस्टेंस 30 मीटर हुआ? नो, दिस इज रॉन्ग। द फॉर्मूला इज यू नीड टू टेक अ स्क्वायर 40 मल्टीप्लाई बाय 40 of the camera height, and then you need to take a square of the distance from that camera to the scene. So you need to take a square from both, और उसके बाद आपने उन दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर निकाल लेना है। सो यू कैन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने कैलकुलेटर अभी ओपन किया है अपने पास। सो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट ऑफ द कैमरा इज 40, so मैंने 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लिया, so ये मेरे पास आ गया फिगर 1600 का। ओके, so now what I'm going to do, I'm going take the b square. So b square कैसे होगा? ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे उसका यहाँ से मेजर करेंगे। तो 30 into 30, this is the distance from the camera to the center of the scene, it becomes 900. पहला हमारा जो फिगर था that is 1600, then we have 900, इसको इक्वल किया 2500, हमारा आंसर आया। now we will take a square root or the square, so 50 is the answer. So 50 foot is the basically the focal length should be covered by your camera. This is very important. This is how you are going to calculate your focal length. Okay, I hope it is clear. Then मैं इसी वीडियो के एंड में एक लिंक भी पेस्ट कर दूंगा जहां पे आप फील्ड ऑफ व्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू basically is the angle of the camera which you have to see after the deployment of your surveillance system. ठीक है जी, तो ये this is the basic things. Then transmission of the video signal, of course, if you are having a longer distances, then you should consider fiber optic. If you are having less than 100 meters, Cat 6 is a good option available over there. And if you are having analog cameras, then RJ59 or RJ6 would be the better options. अच्छा जी, अब हम जब भी बात करते हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन कैमरास की, देन वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कैमरास, बेसिकली थ्री टाइप ऑफ कैमरास: analog cameras, IP cameras, and then thermal cameras. There are so many other cameras, speeding cameras, facial recognition cameras, but they are all coming under the subsidiaries of IP cameras. Then we have a lens. There are different kind of lens available in the market: wide angle, standard lens, telephotic lens, which is required for more than 50 meters if your area is a narrow and long distance you want to cover, like a corridor or an alley. So telephoto lenses are good. Then we have zoom lenses, varifocal lenses. Zoom lens, you can zoom the camera automatically, and varifocal, you can adjust the view or the field of view by moving the camera lens moving forward and backward. Then हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हम जेनरिक जो चीजें आती हैं वो DVR, NVR आते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम कभी भी नहीं सोचते, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी एंड रिटेंशन। रिटेंशन तो हम लोग फिर भी सोच लेते हैं, रिकॉर्डिंग मींस रिटेंशन, बट रिडंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे आपके पास 16 कैमरे की इंस्टॉलेशन है एंड द एरिया इज क्रिटिकली अक्लेम्ड, सो यू कैन नॉट हैव सिस्टम टू बी डाउन फॉर मोर देन 3 seconds और 5 seconds मे बी। सो वहां पर रिडंडेंसी का क्या लेवल होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मैंने अब तक जितना देखा है पाकिस्तान के अंदर, इट सेज 0। कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, बंदा होता है यहाँ पे, गार्ड होता है यहाँ पे हर वक्त। सो दिस शुड नॉट बी द केस। A camera is always something which is there to deter the adversary. ये हमेशा वहां पे जब तक कैमरा चल रहा है एक खौफ दिल में बैठा हुआ है कि शायद मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद मैं दिखा जा रहा हूं। So even for the people who are on a security guarding purposes, it is a deterrence for them as well to keep their duty in line with their SOPs. So redundancy is always there. आपने कभी भी अपने सिस्टम को, अगर सिस्टम ऐसा है जो कि आपका ऐसी लोकेशन पे लगा हुआ है जहां से आप उसको क्रिटिकल लोकेशन है, तो आप हमेशा रिडंडेंसी उसकी रखें, या एटलीस्ट उन कैमरास की रिडंडेंसी रखें जिनको आप ब्लैक नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मैं जैसे मैंने पहले सबसे बताया कि आपको एक मैं चार्ट बताऊंगा
how to install the cameras and everything. So basically ये वो चार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं आपको, विच यू कैन ऑलवेज हैव योर ऑलवेज, आप इसको हमेशा अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। देखिए आपने पहले 3 कॉलम बनाने, पहले में लिखना कैमरा नंबर, दूसरे में लिखनी उसकी लोकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि कहाँ पे इंस्टॉलेशन होनी है उसकी, देन उसका पर्पस। तो मेरे एग्जांपल में फर्स्ट में जो है वो कैमरा नंबर 1 इज बेसिकली कमिंग लोकेशन उसकी है इनसाइड फ्रंट डोर, व्यू इनसाइड ऑफ द डोर, लगा हुआ अंदर की तरफ है, जो कि अंदर का दरवाजे के अंदर की हालात दिखा रहा है। पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई द पर्सनल एंटरिंग फ्रॉम फ्रंट डोर, कि जो लोग फ्रंट डोर से एंटर हो रहे हैं रूम में, वहां पे वो दिखाया उसको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसको पता हो कि ये कैमरा नंबर 1 इज बेसिकली फॉर व्हाट पर्पस। कैमरा नंबर 2 इनसाइड कंप्यूटर रूम, व्यूइंग इनसाइड ऑफ द डोर। कंप्यूटर रूम जैसे या आईटी रूम या सर्वर रूम्स, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ और वो इनसाइड द रूम दिखा रहा है। अब वो क्या दिखा रहा है, पर्पस क्या है इस कैमरे का? टू आइडेंटिफाई पर्सनल एंटरिंग कंप्यूटर रूम, तो जो लोग कंप्यूटर रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अच्छा देखिए यहाँ पे अगेन मैंने वो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यूज की हैं। आइडेंटिफाई यानी कि फेशियल रिकग्निशन, सो द कैमरा शुड बी इस तरह का होना चाहिए जो कि आपके लगा होने के, छत पे लगा होना या कहीं पे लगा होने के बावजूद फेशियल को कवर कर रहा हो। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले बताया उसमें कि पर्पस ऑफ द कैमरा शुड बी वेरी क्लियर, उसी हिसाब से आप कैमरा डिजाइन करेंगे। देन द सेम सिस्टम यू हैव अ कैमरा नंबर 3 जो कि लोडिंग डेक के अंदर दिखा रहा है आपको लोडिंग एरिया, और ये इज अ जेनरिक व्यू टू व्यू द एक्टिविटीज गोइंग इन लोडिंग एरिया। अब ये वो कैमरा है जिसका कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का पर्पस नहीं है, बट इसका काम है कि ये एक्टिविटीज को मॉनिटर रखे। तो इसमें वाइड एंगल लेंस विद AGN और WDR इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट इसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि लार्जर एरिया कवर करे, वाइड एंगल है तो ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं कैमरा नंबर 2 की और कैमरा नंबर 3 की, तो उनके अंदर डेफिनेटली जो फेशियल रिकग्निशन का एप्लीकेशन है वो लाजमी रन कर रही हो बैक के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बंदा कंप्यूटर रूम में एंटर हुआ है, डिस्पाइट हैविंग एक्सेस कंट्रोल ऑन द डोर। दिस इज द लेयर ऑफ द सिक्योरिटी व्हाट वी कैन से। अच्छा जी, नाउ वी हैव an access control system is our second very important thing in this for today's session. तो अच्छा, एक्सेस कंट्रोल एक बहुत कॉमन और बड़ा मिसट्रीटेड किस्म का एक्सेस कंट्रोल बन चुका है हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट में। जबकि एक्सेस कंट्रोल का मकसद ये होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर एवरीवन, who the people who are authorized only they can have access, people or vehicles. Rest of the people they are not allowed inside a secure perimeter of secure facility. लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम अपना कार्ड किसी को दे देते हैं, यार चल तू मेरी एक्सेस लगा देना। सो बेसिकली ही इज नॉट पुटिंग योर टाइम अटेंडेंस ओवर देयर, he is jeopardizing your whole security program. So again, using only a one parameter as an access control is not advisable, is not recommended at any given time in this era now, because आजकल तो हमारे फिंगरप्रिंट्स तक आराम से कॉपी हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में सिर्फ कार्ड देके फिंगरप्रिंट के ऊपर इक्तफा करना, I think this is not the wisest system to be having in your organization. अच्छा, एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारे पास जैसे मैंने बताया कि क्रेडेंशियल्स, दिस इज कॉल्ड योर क्रेडेंशियल्स, 3 तरह की होती हैं। एक वो जो कि विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग यू नो, which can be something you know means your PIN code. This could be your access control password. Something that is inherent to you means your fingerprints, your iris scanning. This is something which is inherent to you. ये आपने खुद कहीं से परचेज नहीं की. This has been given to you by God from your family tree. Or something you could carry means is a magnetic stripe card
or a badge, a strip, barcode strip reader, or anything which is in a form of a credential which you can carry. तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो कंप्लीट चीजें हम होनी चाहिए एक अच्छे मजबूत कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में, वो होना चाहिए क्रेडेंशियल रीडर जहां पर अपना कार्ड शो करेगा एम्प्लॉय। कम्युनिकेशन केबलिंग, यूजली तौर पे हमारी एक अच्छी आदत है, अच्छी तो खैर नहीं है लेकिन अच्छी आदत है कि हम गधा और घोड़ा एक ही लाठी से हाँक देते हैं। तो इस चीज को खुदारा चेंज करें। There are communication cables in the market. If you are going to use a proper communication cable, trust me, believe me, I have seen it. आपका सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा पावरफुली रन कर रहा होगा, प्रॉब्लम्स आने के चांसेस उसमें कम होंगे अगर आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन केबल यूज की है विच इज बीन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय द कंसल्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सेस कंट्रोल। अगर आपने कैट 6 केबल ही डाल दी है एक्सेस कंट्रोल में भी और कैट 6 केबल ही डाल दी है आपने सीसीटीवी कैमरास में भी, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। ट्रस्ट दिस इज नॉट, कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसको एक मिनट में उठा के फेल कर दे। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन केबलिंग। Then we have a distributed processor in case if you are having a very big system, आपके पास अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन एरिया तो वहां पे आपको बड़े सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो then you may have a distributed network. Central database, यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है कि जहां पे आपका डाटा स्टोर हो रहा हो दैट इट शुड बी इन अ सिक्योर प्लेस, वहां की एक्सेस लिमिटेड हो और कंट्रोल्ड एक्सेस हो ताकि जो भी एक्सेस हो रही है उसमें वो रिकॉर्डेड हो, कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस हो, मेल फंक्शन हो, वो रिकॉर्ड हुआ हो ऑलरेडी। देन अ सॉफ्टवेयर, देन सप्लीमेंट्री इंटरफेसेस मींस ब्रैकेट्स, माउंटिंग्स और फॉर एग्जांपल आपका एक्सेस कंट्रोल है, अगर वो किसी फायर आर्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना चाह रहा है या सिस्टम बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई हमारा एक्सेस कंट्रोल जो है वो सारे लोड को रिलीज कर दे वंस देयर इज अ फायर इन दैट पर्टिकुलर जोन, तो ये जरूर आपने देखना है, आपने कंसीडर करना है कि आपका एक्सेस कंट्रोल थर्ड पार्टी के साथ कैसे इंटरफेस करेगा। ठीक है जी। एंड देन अगेन इफ वी आर गोइंग टू हैव डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू गो आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, तो उसका क्या आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। So these are the basically access control things which can be done. A comprehensive access control system is designed to do the following. But as said before, permit only authorized person and vehicles to enter and exit. असल का ये भी होता है कि जी जो ऑथराइज है सिर्फ वो एंटर हो और वो ही बाहर में निकले, you know? So a system should be fail safe in that matter कि जो बंदा अंदर गया था वही बंदा बाहर भी आए, ऐसा नहीं कि अंदर गया यूसुफ और बाहर निकले रईसा। सो इट शुड नॉट बी इन दैट केस। देन डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ काउंटरबैंड मटेरियल्स। अच्छा, काउंटरबैंड मटेरियल्स को रोकना भी एक्सेस कंट्रोल के जिम्मे में आता है। क्यों? क्योंकि वो जहां पे लगे होंगे काउंटरबैंड डिटेक्टर्स, दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू हैव एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस एज वेल। So it is related to each other और इन सब की रिकॉर्डिंग करा हुआ कैमरा। So now you can see the circle. If you break the circle, you will break the security chain. I hope you get the idea. Detect and prevent the unauthorized removal of assets. Okay, for example, I'm not authorized to take my laptop with me to home. अगर मेरे पास ये एक्सेस नहीं है और मेरे पास ऐसे गैजेट्स लगे हुए हैं एग्जिट्स एंड एंट्रीज के ऊपर जो कि डिटेक्ट कर सके, जैसे एक्सरे मशीन्स लगी हुई जो कि डिटेक्ट कर सकें कि व्हाट आई एम कैरिंग इन माय बैग व्हिच इज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेक फ्रॉम द साइट, तो वहां पे एक्सेस कंट्रोल इज अगेन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। मे बी मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर कोई एक ऐसा डाटा हो जो कि बहुत क्रिटिकल नेचर का हो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और उसको लीक होना बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट शुड नॉट बी रिमूव। तो उसको डिटेक्शन के लिए देन यू आर गोइंग टू हैव एक्सेस कंट्रोल एज
Provide information to ensure timely assessment and respond to the event categorization of alarm. हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अक्सर हमारे यहाँ आता है जी, ओ अलार्म आया, चलो ये बगैर देखे जाने पहचाने के अलार्म क्या है उसको हमने म्यूट कर दिया। तो ये एक जरूरी चीज है इस चीज को समझने के लिए कि हमेशा जब भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करें उसमें ये जरूर देखें कि एक्सेप्शंस होनी चाहिए किस अलार्म के लिए और कौन से अलार्म्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी टू व्यू है। मैंडेटरी व्यू का मतलब जब तक आप उस अलार्म को रिव्यू नहीं करेंगे, द ऑपरेटर रिव्यू नहीं करेगा, वो अलार्म स्क्रीन से हटेगा नहीं। तो आप इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि किस अलार्म के साथ कैसा बिहेवियर किया गया। अगेन जो अगर हमें कोई हमारे कंसल्टेंट्स भाई या कोई डिजाइनर्स वगैरह हमारे सुन रहे हैं तो वो इस चीज को जरूर, इन 4-5 क्वेश्चंस को जरूर पूछें अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, एंड यूजर से कि डिजाइन करते हुए सिस्टम्स को आपको क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। जैसे कि आपको सीसीटीवी में मैंने अभी गाइड किया कि क्या क्या चीजें आपने पूछनी है, आपको पूछनी चाहिए वहां पे। पहला जी जैसे कि well the access control system will be integrated with other systems such as CCTV, FSCP, elevators, IDAS. FSCP means fire alarm control panel, elevators, IDAS. अच्छा, कुछ जैसे बड़े होटल्स वगैरह में आजकल ये ट्रेंड है कि if you are having a room on 10th floor and the gym is on 4th floor, so you can have only access to the 10th floor, to the ground floor, because you are going to enter from there, and to the gym. वो किसी भी और फ्लोर के ऊपर आपको लेके नहीं जाएगा। सो एलिवेटर्स इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट ओवर देयर। IDAS is intrusion detection system. We will get back to this in this one. Yusuf, Yes. we are entering the last 10 minutes of our program. और Yeah. उसमें थोड़ा सा एक चीज मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया जी। तो एक्चुअली इसको दो व्यूज से देखना है कि जी, एक तो ये है कि हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जब कैमरास लगा रहे हैंगे तो जी, इसमें एक कैमरा मतलब है हमने कैमरे को भी सिक्योर करना है। यहाँ पे ये होता है कि कैमरा ही कोई उतार के ले जाता है। एक तो ये चीज को किस तरीके से जी, सिक्योर किया जाए, और जी, एक चीज ये है कि आईपी कैमराज हैं तो आजकल का तो थ्रेट लेवल जो है, साइबर सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट है। जी, इसको कैसे, इस चैलेंज को ओवरकम किया जाए, थोड़ा सा इसको अगर आप टच कर सकें, क्योंकि बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी कोई भी आईपी कैमरा के अंदर आपके आईपी एड्रेस अगर किसी के पास पहुंच जाता है तो यू आर अ टेक्निकल पर्सन, यू नो कि क्या किया जा सकता है उसमें। और क्योंकि हमारे डीवीआर जो हैं वो भी आईपी बेस्ड होते हैं सारे के सारे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली इसको टच कर दें काइंडली। जी, जी। रईस साहब, आपको शायद देखा हो आपने, मैंने सबसे पहला मेरा पॉइंट जो था वो जो चीज थी, जब मैंने फिजिकल सिक्योरिटी को डिफाइन किया था तो उसमें कहा गया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये एक जुज है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज योर आईपी ऑफ द कैमरा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज आईपी ऑफ योर डीवीआर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब आपने उसका, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस एट एनी गिवन टास्क। आपका घर का कैमरा भी है तो उसका पासवर्ड भी डिफिकल्ट होना चाहिए कि कोई भी उसको साइबर अटैक करे तो वो जरूर उसमें करे। अच्छा, एडिशनली इसमें ये जरूर आप देखें कि जो आप मैन्युफैक्चरर यूज कर रहे हैं अपने कैमरास के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जो इसमें से सबसे आखिर में मैं बोनस टिप शेयर करूंगा, that is going to be the turning point of I hope inshallah for the industry के उसके ऊपर अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो then we will be the people who are going to follow the international practices for a secure security systems। ठीक है जी। तो जस्ट लाइक 3-4 स्लाइड्स हैं, फिर हम जल्दी से उसको करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एंट्री और एग्जिट्स को भी जो है हमने वो कंट्रोल करना है। तो एक्सेस कैसे होगी और इन केस ऑफ एनी डिनायल हम कैसे उसको मॉनिटर करेंगे इन केस ऑफ एनी अलार्म। हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या सिक्योरिटी कंपोनेंट्स कंप्लाई करने चाहिए, बिल्डिंग कोड्स, फायर कोड्स वगैरह, इट्स ऑल एज पर द लोकल लॉ ऑफ द सिटी और एरिया और प्रोविंस। मेंटेन कौन करेगा डेटाबेस? दिस इज अगेन रईस साहब, दिस इज द सेकंड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
who will maintain the database? Because अगर मैं करप्ट हूं और मेरे पास एक क्रेडेंशियल है और मैंने वो डेटाबेस में से एक 2 नंबर कार्ड बना के दे दिया है एडवर्सरी को, he can come in legally and then he can destroy whatever he wants to destroy, and then he can go out without having any trace. So these questions are very important to answer कि कौन डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है, who will be the responsible. So these questions which are never been asked to anybody in this kind of security, when designing security systems, we should be asked from now. I'm sure के लोगों को ये questions अब पूछने चाहिए कि भाई database कौन maintain करेगा, because this is not the work of HR manager, okay, this is a completely security concern, and yeah, he can assist, but he should not be the only person. Okay जी, एक्सेस कंट्रोल में credentials की हम बात करें तो there are several types of credentials. Credential means the way through you get access, which is magnetic stripe, waveguard, barcode, proximity. The smart card and biometrics are the most common in nowadays. एक जमाने में barcode हुआ करता था जब आप stripe किया करते थे उसको, but now that has been obsoleted from the market, so it is there. Locks, again बहुत important. आपने बहुत अच्छी नस्ल का एक्सेस कंट्रोल लगा लिया, but then you are going to overlook the mechanics, the lock of your system, of your door. अगर आपने डोर के ऊपर लॉक सही नहीं लगाया, then the security system is collapsed again. So locks again will be going to be play a very important key role in your access control system designing and implementation and its success. जैसे जो normal locks हैं, warded lock, lever lock, pen temper lock, wafer temper lock, dial combination, these are the different mechanical locks. Electromechanic locks की हम बात करते हैं, since it is an ELU system, so that then there should be electric over there. Then we are having deadbolt, latch system, key strike, lock set, electromagnetic locks. So it is like this. अच्छा, एक बड़ी important चीज है यहाँ पे, अक्सर का सिस्टम सुनना आता है ऐसे कि यहाँ पे fail safe है सिस्टम या fail secure है. So this is a very important thing. मैं आपको उसकी exact वो बता दूं. Fail safe locking mechanism is one that will unlock under any failure condition. लाइट चली गई, गेट खुल जाएगा. फायर अलार्म हो गया, गेट खुल जाएगा. लॉक malfunction हो गया, गेट खुल जाएगा. This is called fail safe. Now fail secure is the opposite. कि कुछ भी हो जाए जी, डोर नहीं खुलना चाहिए. लाइट चली जाए, डोर नहीं खुलना चाहिए. Should be powered with the backup battery. और जो भी उसका मैकेनिज्म हो जाए पीछे से, but it should not be, the door should not be open. So these two are very key terminologies which should be considered. Then we have control panels. Ideally should be control panels. हमने अक्सर देखा कि जहां गेट है उसकी दीवार के ऊपर ही पैनल लगा हुआ है. वो जब उनको ऑफ करना है, गेट को रिलीज करना है, वो उन्होंने मेन पावर सप्लाई खोली, बंद किया उसको, चलो जी हला हला. दिस शुड नॉट बी द प्रैक्टिस. हमेशा अच्छी जगह लगाएं जहां पे एक्सेस ना हो. लॉक सिस्टम प्लानिंग आप जरूर, अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया सीसीटीवी के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ आपको रखने हैं अपने साथ, नंबर ऑफ कैमरास और लोकेलिटीज, एक चार्ट डेवलप करें. सेम यही चार्ट की चीजें आपसे करेंगे. आई विल या सो दिस इज द एक्सेस कंट्रोल स्केड्यूल चार्ट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, डोर नंबर 1, द डोर टाइप इज वुड, और जो इसका लीफलेट है वो सिंगल लीफलेट है जो नॉर्मल होता है. एक्सेस एरिया क्या एक्सेस कर रहा है, जो आईटी रूम को एक्सेस करेगा. लॉक टाइप यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लॉक टाइप होनी चाहिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक. यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल आप क्या रखेंगे, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल रखेंगे रीडर प्लस बायोमेट्रिक, यानी कि कार्ड रीड तो करे, जो आपका स्मार्ट कार्ड है या जो आपका कोई भी कार्ड है वो रीड तो करे, लेकिन साथ साथ बायोमेट्रिक को भी करे. इट कुड बी योर फिंगर, इट कुड बी योर वॉइस, इट कुड बी योर आईएस स्कैन. सो इट इज लाइक, बिकॉज एक आईटी रूम एक सिक्योर एरिया है. अगेन ग्लास के, अगर ग्लास डोर है, डबल लीफ है या सिंगल लीफ है, तो वहां पे ड्रॉप बोल्ट रिकमेंडेड है. अगर मेटल डोर है, सिंगल लीफ है, तो वहां पे मैग्नेटिक लॉक रिकमेंडेड है. सो अगेन दीज यू हैव टू मेक इट दिस काइंड ऑफ चार्ट, ताकि इंस्टॉलर के लिए भी आसानी हो, डिजाइनर भी इस चीज को डिजाइन करते हुए अपनी हर चीज को कवर करे, कोई चीज ओवरलुक ना कर दे, और एंड यूजर के लिए भी आसानी हो कि उसने क्या दरवाजे पे क्या लॉक इंस्टॉल करना. नाउ द कॉन्ट्राबैंड डिटेक्शंस. अच्छा, ये वो डिटेक्शंस हैं जो कि बेसिकली जैसे कि आपके मेटल डिटेक्टर्स वगैरह हो, एक्सप्लोजिव डिटेक्शंस हो गए, पैकेज डिटेक्टर्स हो गए, तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्ट्राबैंड डिटेक्शंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ द
access control systems and the part of the security surveillance system. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आना चाहिए आई एम अगेन दिस वन द 4 Ds. नाउ व्हाट आर द 4 Ds ऑफ द सिस्टम? इट इज डिटर, डिटेक्ट, डिले एंड देन रिस्पॉन्ड. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये तो 3 D है, तो जो चौथा D है बेसिकली इट इज एज इक्वल एज रिस्पॉन्ड. अब वो आपके पास डिटेक्ट कि कोई भी कैमरा लगा हुआ है या कोई भी रोड ब्लॉकर लगा हुआ है या कोई फेंस लगी हुई है या कोई ऐसी चीज बार बार लगी हुई है जो कि इंट्रूडर को या पोटेंशियली नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को अंदर आने से रोकने में मददगार साबित हो. दिस इज द डिटरेंस. डिटेक्ट, अगर किसी सिस्टम में किसी जगह से कहीं कोई इंट्रूजन हो रही हो या सिक्योरिटी ब्रीच हो रही हो तो रियल टाइम के अंदर डिटेक्शन की जाए, जो कि हो सकती है किसी बहुत सारे सेंसर्स के साथ और उसके बाद आपका वीडियो मोशन के साथ. देन डिले. डिले का मतलब यहाँ पे ये हम ले सकते हैं कि जी जब अगर वो इंट्रूजन कर रहा हो तो उसके एक्शन को डिले किया जाए ताकि हमारी रिस्पांस फोर्स टाइमली रिस्पॉन्स कर सके. जैसा कि रिसेंटली अभी हमारा एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. उसमें डिटेरेंस क्या थी? बाहर के बैरियर्स. डिटेक्ट क्या हुआ? जैसे ही पहला शॉट फायर हुआ. डिले कहां पे आया? जब सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको काउंटर अटैक किया. और रिस्पॉन्ड किसने किया? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन द मीन टाइम. सो आई होप दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ IDAS system in a analog situation. Wow. So there are like now we will go back to the sys. It is an ELV system. So of course there is a part available which is called 3 minutes. We have 3 minutes. I know. I just watched it on the wall clock. So okay. So motion detections are there. These are the parts which you can always review them. They are very straightforward sensors which are available. Okay. So this is the bonus tip which I want to talk about dearly. So आप हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें अपने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले. ये एक छोटा सा सिंपल चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है. यू कैन ऐड एंड यू कैन रिमूव थिंग्स फ्रॉम इन इट और आप इसको हमेशा यूज करें. पहले रॉ में आप प्रोडक्ट का नाम लिखें. सेकंड में फॉर एग्जांपल जैसे अवेलेबिलिटी की मैंने बात की तो यू कैन पुट द अवेलेबिलिटी यस अवेलेबल इन कराची मार्केट इन ऑल ओवर पाकिस्तान व्हाटएवर. और ऑन ऑर्डर है या स्टॉक में अवेलेबल है. इट इज लाइक दिस. यू कैन पुट एंड गिव द अप्रोप्रिएट मार्क्स ओवर देयर. देन टेक्निकल सपोर्ट. आइदर उसकी टेक्निकल सपोर्ट लोकल है, ओवरसीज है, ओवरसीज टाइम लैप्स कितना है. देन स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट कितनी मार्केट प्रूवन है, कितनी ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर काम मार्केट में हो चुका हुआ है. Then there's a warranty. Of course, there is an important part after the installation, which is called maintenance and warranty. Who is going to take care of the warranty? So इस चार्ट को जरूर मेंटेन करें प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए. जब आप इस चार्ट को मेंटेन करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि मैं किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूं. बिकॉज द सेल्समैन विल गोइंग टू कंफ्यूज यू ऑलवेज कि सर ये ले लेंगे सबसे बेस्ट. So, but as a security designer, you need to decide for your organization or for your client what is the best for your client. So this is the list of the references which I took the data from. Physical Security Principles as is 2015 book, as is guideline, facility for physical safety and maintenance 2009, implementing PPS, physical protection system segregation, and then SCIS KSA is the standard for following industry security in Saudi Arabia. This is my number and this is my email ID. If you are having any kind of question, you need to understand in depth. और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं आंसर. आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें. इसको जितने हद तक लोगों तक फैला सकते हैं फैलाइए. आप और मैं मिलेंगे तो मार्केट बेहतर होगी, वरना कहीं बेहतरी का चांस नहीं है. Okay, there is always a start. That's the start. Thank you, Yusuf. It was a very informative session. और ये सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम को लोग सिर्फ जिस तरह मेरा व्यू था कि बस कैमरा लगा दिया और वो उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन आपने इसे खासा कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन किया. इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू और हर चीज को बड़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया.
on behalf of APSS core team, thank you, and हमारे सारे members My की तरफ से pleasure. आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने आप को वॉलंटियर किया एक्सप्लेन करने के लिए, इतनी डिटेल में ये सेशन चलाया आपने, इतना टाइम निकाला। आई नो कल ईद है और आप उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, खासी तकलीफ में भी बैठे हुए हैं, लाइट गई हुई है, आई कैन सी यू I इन know. डार्क नाउ। Yeah. और Thanks to honestly, Karachi it K was a Electric. beautiful learning experience. Yeah. I am really obliged and thank you very much. Thank Allah you, Raisa. Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Viewers, thank you very much for joining us, and we will be sharing this video on our YouTube channel, and please do subscribe to it and उसको like भी करें और वीडियो को देखें, उसे डिटेल में अपने दोस्तों को शेयर करें। सिक्योरिटी इज चैलेंज नाउअडेज और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग ने कवर किया है। इसको खासा क्या कहते हैं लोग पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं खुद इस तरीके से नहीं समझता था सिक्योरिटी कैमरास को और इन डिवाइसेस को। यूसुफ ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस, and please join us on our next episode of Friday Hour with APSS. We'll bring you another uh, professional from the industry of security, and we'll be sharing some important stuff with you. और अब आपकी दुआओं का तालिब हूँ। आपको एडवांस में अपनी तरफ से APSS की तमाम मेंबरान की तरफ से और बिलखुसूस APS के कोर टीम कोर कमेटी जो है उसकी तरफ से ईद मुबारक हो। अपने बच्चों के साथ ईद मनाइए, खुशियां मनाइए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपनी कुर्बानी में मुस्तहिकीन को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।